آپ کو کتنی دفعہ استعمال کیا اور کیسے کیا؟ تقریباً ہم 3 سال سے اکٹھے ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, 3 سال سے اکٹھے 3 ہیں؟ سال سے. یعنی کہ یہ شخص ہے برہان نامی 65 سالہ بابا آپ کو 3 سال تک اپنے ساتھ رکھ کے استعمال کرتا رہا, آپ سے اپنی بہن کی خدمت بھی کروا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی ہوس بھی پوری کر رہا تھا. ہاں یہ چیز تھی. اس نے عورت کا جسم لوٹنا ہوتا ہے, اسی طرح اس نے عورت کی عزت لوٹنی ہوتی ہے, اپنے بیڈ پہ لے کے آنا ہوتا ہے, لیکن کرتا آہستہ آہستہ ہے, بڑے طریقے سے, بڑے پیار سے اور بڑے ہی لالچ دے کے, پیسے دکھا کے. کیونکہ السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این پوائنٹ. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص شیئر کرنے جا رہا ہوں, ایک ایسے شخص, ایک ایسے انسان کی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ تقریباً حیران ہو جائیں گے اور پریشان بھی ہو جائیں گے. ایک شخص جس کی عمر تقریباً 65 سال ہے, پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر لڑکیوں کو ورگلاتا ہے, اپنے جال کے اندر پھنساتا ہے, پیسے دکھاتا ہے اور اس کو اپنے پیار کے اندر پھنسانے کا جال پورا بچھاتا ہے, پیار کے اندر پھنسا کر اپنے بیڈ پر لا کر استعمال کر کے بعد میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ شخص کون ہے اور اب تک یہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ کھیل چکا ہے, اس کا طریقہ واردات کیا ہے اور آپ اس سے کیسے بچ سکتی ہیں اگر آپ فیمیل ہیں, آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے. میرے ساتھ خاتون موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا ہے, سیم اسی طرح کی چال چلی ہے, سیم اسی طرح استعمال کیا ہے, پیسے کا لالچ دیتے رہے, اس کے بعد گھماتے رہے, پھراتے رہے, ساری کہانیاں کرتا رہا, اینڈ پہ اپنا مطلب نکال کے بھاگ چکا ہے. بات کر کے جانتے ہیں ان کو انہوں نے کس طرح ٹریپ کیا اور اس کا اصل طریقہ واردات کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. مجھے بتائیے گا, یہ جو شخص ہے کیا نام تھا اس کا؟ برہان حمید. برہان حمید. تصویر ناظرین اسکرین پر چل رہی ہے. یہ جو شخص ہے اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے, جب مدد کرتا کرتا آسا آگے بڑھتا ہے, پھر وہ لوگوں کو دن رات ایک کر دیتا ہے کہ تم بہت زیادہ ضرورت مند ہو. یہ دیکھتا بھی وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہو, یعنی کہ دیکھتا ہے کہ کون شخص کس ٹائم پر اس کو کیا مجبوری ہے, کیا مجبوری ہے, یہ اس کا دیکھتا ہے نا, پھر اس کو ہر چیز میں پوری کر کے دیتا ہے. جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ لو جی اب یہ میری ہتھے چڑھ گیا. بندوں کی چیزیں پوری کرتا ہے یا صرف لڑکیوں کی؟ نہیں, جیسے اب میں شادی شدہ ہوں تو میرے شوہر کی بھی دوائی وغیرہ لا کے دیتا تھا, ساتھ لے جانا تو لا لو کے دے دینی, سارا کچھ کرنا, پوری فیملی کی پھر کرتا ہے, سمجھو کیئر نا, کہ پوری فیملی کو دیکھتا ہے نا. اب جو لڑکیاں ہوں گی ان کو تو لڑکیوں کو ہی کرتا ہوگا, میرے حساب سے ان کے والدین کو بھی کرتا ہوگا ساتھ. یعنی کہ پورے گھر کو وہ اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے کہ ان کو اس طرح مطمئن کرنا, مطمئن کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیسا ریلیشن بنا, آپ کو اس نے کیسے ٹریپ کیا, کیسے استعمال کرتا؟ میرے ساتھ تو ایسے بنایا نا, وہ محلے میں رہتا تھا تو میں آنا جانا تھا, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی کچھ دکھ تکلیف ہونی تو بتا دینا. پھر ان کو پتہ چلا نا جیسے, تو وہ پھر انہوں نے جی آنا جانا شروع کر دیا. تو سبزی لانی, کچھ بھی لانا, کوئی بھی ان کی بہن تھی تو ان کے ساتھ کھانا شانا دے آنا. تو وہ اس نے نا اپنے حساب سے پورا پراپر, اس کو پتہ چل گیا کہ اب مجبور ہے, اب میں اس کو کیسے کیا کرنا ہے وہ تو اس کو ہی پتہ ہے نا, اس نے اپنے حساب سے کیا. پھر صبح یہ بیوی کو چھوڑ کے ہمارے گھر آ جانا, ہمارے گھر سے نکلنا, بیوی کو لینے چلے جانا, پھر بھی رستے میں فون کرتے جانا. 65 سالہ برہان حمید ہے, یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتے تھے؟ بیوی کو آفس چھوڑتے تھے تو خود ہمارے گھر آ جاتے تھے. تقریباً میرے شوہر گھر ہی رہتے تھے, 2 بجے کی ڈیوٹی ہے, تو وہ فیل بھی نہیں ہونے دیتے تھے نا کہ کیا سے کیا کرنا ہے. آپ کی میاں کو شک نہیں ہوا کہ یہ شخص ہے, یہ میرے گھر آتا ہے, میرے گھر آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے یا اس طرح کی اس کی نظر ہے؟ نہیں, وہ اگلے بندے کو دیکھو, کہ جو عمردار ہوتا ہے اس کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے, تجربہ تھا اسے, اس کو یہ پتا تھا اس کو کیسے کور کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا, کیا حساب کرنا ہے. کبھی دودھ لینے بھیج دینا, کبھی ویسے خود ساتھ مجھے لے جانا کہ وہاں جانا ہے. کیا لواتا مجھ سے ہی تھا کہ تم بولو کہ میرے ساتھ جانا ہے. تو پھر وہ خیمہ مین گھر تھا, وہاں چلے جانا, تو ان کا دیکھنا. پھر بعد میں بچوں کو کبھی کبھی ساتھ لے جانا, یا ان کا گھر جو ہے نا ادھر چلے جانا. باقی یہ مرحلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو کرتا رہتا ہے. برہانہ میں یہ شخص ہے, آپ کے نزدیک اس کی کتنی عمر ہے؟ آپ تو 65 سال بتا رہی تھی, جب آپ کے پاس آیا تھا, آپ کے ساتھ رہتا رہا, کتنی عمر تھی؟ تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے, تو وہی 60 سال ہو گئی. یعنی کہ 60 سال کی عمر میں بندہ ضعیف ہوتا ہے, وہ بزرگ ہوتا ہے, اور لوگ اس کو معزز سمجھتے ہیں, وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانا. میں نے یہی سمجھانا کہ میرا معجزہ ہے, دیکھو میری تکلیف میں, میں غریب ہوں یا میں پریشان ہوں, میری مدد کر رہا, میری ہیلپ کر رہا. میں تو یہی سوچا, میں تو پورے محلے کو بتا دیا کہ یہ شخص بہت اچھا ہے, میرے ساتھ اتنی ہیلپ کر رہا ہے, سارا کچھ ہی انہوں نے, کیونکہ سب کو کہا, میں نے کہا یہ بہت اچھا انسان ہے, میری اتنی ہیلپ کرتا ہے. میں بتا دیتی تھی جا کے جس کو بھی. اس کو جب پتہ چلا نا پورے محلے میں اس نے ڈھنٹولا پیٹ دیا. تو اب میں یہ برا بھی نہیں کہہ سکتی. اس کے بعد یہ جی تمہیں تو پیار کی اور توجہ کی ضرورت ہے, تمہیں تمہارے ماں باپ نہیں تھے, شوہر کا پیار. شخص ہے یہ پہلے مدد کرتا ہے,
मदद करने के बाद फिर बाद में अपना काम अपना मतलब निकलवा। हाँ, फिर ऐसे ही करता है। उसके बाद जब पता चल जाता है कि ये मेरा मतलब निकल गया है, फिर वे आगे शुरू हो जाता है यानी कि और लड़की ढूंढ लेते हैं। और लड़की ढूंढ लेता है। फिर मैंने बताया कि वो फेसबुक पे इसकी कितनी दोस्तें थी, कितनी फ्रेंड थी, उनका सबका ही मुझे पता है। अच्छा, यानी कि फेसबुक पर भी ये जो इसका निज़ाम है वो चल रहा है, फेसबुक पर भी लड़कियां फंसा रहा है। हाँ, और व्हाट्सअप के अंदर जो ग्रुप में होती थी लड़कियां, उनको कहता था तुम लैदा हो जाओ, तुम पर्सनली मेरे से बात करो ना, व्हाट्सअप से लैदा हो जाओ। जो ग्रुप में होती है वो तो सबके पास मैसेज जाता है, तो जो लैदा होती है वो तो इसके पास ही आएगा ना। ये बरहान करता क्या था? ये था मुलाजम ही था, वो डॉक्टरी शोबे में भी रह चुका है, इतना मुझे पता था। गवर्नमेंट मुलाजिम। गवर्नमेंट मुलाजम था। तो उसके बाद ये क्या करता था क्या नहीं, क्योंकि अपने हिसाब से मुझे नहीं पता ये क्या था। ये शख्स है बरहान नामी, 65 साल इसकी उम्र है, गवर्नमेंट मुलाजिम है। सबसे बड़ा उसके पास तो मैं कहता हूँ लाइसेंस ही ये है कि गवर्नमेंट मुलाजिम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लड़कियों को जब पता चलता है कि ये शख्स गवर्नमेंट मुलाजिम है तो बड़ी जल्दी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं। दैन उसके बाद अमीर है, पैसे वाला है और पैसे का लालच देता है, गाड़ी भी रखी हुई है। उसके बाद इसका तरीका वारदात ये है कि ये लड़कियों को देखता है कि इस औरत को, इस घर के अंदर इतने फ़र्द हैं, इनकी ये मजबूरी है, उस मजबूरी को वो सॉल्व करता है, उसका मसला हल करता है। देन उनके घर के अंदर जो उसको औरत अच्छी लगती है उसको अपने हाथों में लाता है, हाथों में ला कर उससे अपना मतलब निकलवाता है। अब वो जो मतलब है वो मैं इन्हीं से जानूंगा किस तरह का मतलब निकलवाता है वो। मतलब क्या निकलवाना है, देखिए यानी कि वही मतलब जो एक मर्द को एक औरत से हो सकता औरत है। से होता है वही। तो बाद में ये होता है कि बाद में कह देता है कि मैंने कोई ऐसा नहीं है ये वो। पहले कहता था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें प्यार और तवज्जो की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस चक्कर में मैं कभी भी नहीं आई, क्योंकि मैं पहले से ही वहीं रह रही हूँ। ठीक है, ये बंदा बाहर अंदर जाता है, ये कुछ गलत काम करता है वो किसी को नहीं पता होगा। औरत अगर करेगी तो साफ पता चलेगा, क्योंकि वो अपने घर में ही रहती है। और मैं इसके पास नहीं जाती थी, ये मेरे पास आता था। अब मुझे कई लोगों ने कहा भी है कि मैं गंदी औरत हूँ। बहरहाल अगर मैं गंदी औरत हूँ तो मैं तो इसके पास नहीं ना गई, यही मेरे पास आता था ना। तो और मज़ीद कितने मेरे आशिक हैं या कोई भी है मुझे दिखा दे, मैं भी वहीं रह रही हूँ। अच्छा, ऑफ कैमरा आप ये भी बता रही थी कि लोग जो हैं वो मानते ही नहीं। ये इतना ही शरीफ शख्स था जिस सोसाइटी में रहता रहा नाज़रीन, लोग नहीं मानते कि ये बंदा इस तरह का है, लेकिन आज ये इन चीज़ों का इंकशाफ कर रही है कि ये शख्स है ये इस तरह करता रहा। ये जो शख्स है ये औरतों को फंसाता है। मैं फिर वो एक बड़ा तल्ख लफ्ज़ है जिसको कहा जाता है कि जना, वो करता है औरतों के साथ और उनको पैसों का लालच देकर, पैसों को बार बार यही बात है कि उनकी मजबूरी को हल करने का लालच देकर उनको इस्तेमाल करता है। आपको कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया और कैसे किया? तकरीबन हम 3 साल से इकट्ठे ही रहे हैं। ठीक है, 3 साल से इकट्ठे 3 हैं? साल से हम उनके घर, वो आंटी मजदूर थी तो उसके पास रहना था। मैं उधर ही अपने बच्चे छोड़ के सारा कुछ करके मैं इनके घर ही छोड़ सोती थी। यानी कि ये शख्स है बरहान नामी, 65 साल बाबा, आपको 3 साल तक अपने साथ रख के इस्तेमाल करता रहा। यहाँ ज़ाहिर है उसको एक नुकरानी की भी ज़रूरत थी, दूसरी अपनी हवस की भी थी। तो नुकरानी की इसलिए कि बहन की खिदमत करवानी थी, कि बहन मजदूर थी। और ये दूसरी बात ये है कि उसको ये ज़रूरत थी कि मेरा साथ भी काम चलता रहे। वो किसी को कहूँगा कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, लोगों की नज़रों में ये था। लोग ये कहते हैं वो नमाजी परहेज़ी बंदा है। तो मैंने कहा मेरे कौन से पोस्टर लगे हुए हैं कि मैं ऐसी हूँ, वो नमाजी परहेज़ी है तो मैं भी ऐसी नहीं हूँ। किसी को नज़र आ रहा है मैं भी यानी वही। कि लोगों को ये दिखा रहा है कि वो आपकी मदद कर रहा है, आपसे अपनी बहन की खिदमत भी करवा रहा था और साथ साथ अपनी हवस भी पूरी कर रहा था। हाँ, ये चीज़ थी। उसकी अपनी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं थे? बच्चे नहीं हैं, बेटी एक वो बाहर रहती है, तो बीवी तो थी। बीवी काफ़ी उम्र की, ज़ाहिर है वो उम्र का तो वो भी उम्र की अब ना। तक कितनी लड़कियां फंसा चुका है ये जो शख्स है? ये तो जो फेसबुक में इसकी थी, जो व्हाट्सएप पे मेरे लड़कियों के नाम पता है वो मैं बता देती हूँ, जो इनके साथ अटैच थी। एक तो सैमा खान थी, एक अलीज़े सैर थी, और एक हीरा रहमान थी, और एक उसका नाम नहीं आ रहा। सारे बड़े बड़े नाम हैं, ये तो बड़ी मशहूर लड़कियां जिनका नाम आप बता रही हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि जो ना, अब एक लड़की के तो इसकी बीवी ने मुझे मैसेज भी सुनाए थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। करता रहा है, आपके हाथ से भी खाना खाता रहा है, आपको भी कहता था कि खाना बनाए मैं आ रहा हूँ। खाना तो खाता ही मेरे हाथ का था, वो कहता था कि तुम्हारे से अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो शख्स है ये आपको प्यार और तवज्जो दे के आपकी इज्जत, आपका जिस्म सब कुछ ले उड़ा? हाँ, ज़ाहिर है उसको ये था कि इसको कैसे काबू करना। हमने वही बात बताया ना कि वो सही उम्रदाज, जो उम्रदाज होता है उससे ज़्यादा तजर्बा होता है। अब मेरी 36 साल अब हुई है उम्र। ठीक है, पहले तकरीबन 4 साल पहले मेरी भी 32 थी।
तो उसको ये था कि ये ऊपर से भाई जवान जानूँ मैं कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ, तो उसको ये था कि इतना बूढ़ा इंसान है, और मुझे ये था कि पढ़ा लिखा बंदा है, डिसेंट बंदा है, यार मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, तो ये तो मैं तो गाड़ी शाड़ी वाला है, सारा कुछ ही है, कि मुझसे प्यार ही इतना कर रहा है, इज्जत ही इतनी दे रहा है, तवज्जो ही इतनी दे रहा है। अच्छा नाज़रीन, ये शख्स है 65 साल इसकी उम्र है और मंजा हुआ प्लेयर है। जवान जब किसी औरत से प्यार करता है, जवान लड़का, तो वो अपने जज्बात बड़ी जल्दी जाहिर कर देता है। ये शख्स अपनी 65 साल उम्र का फायदा इस तरह उठाता है कि ये औरत को सेम वही काम करता है, उसी तरह ही इसने औरत का जिस्म लूटना होता है, उसी तरह इसने औरत की इज्जत लूटनी होती है, अपने बेड पे लेके आना होता है, लेकिन करता आस्ता है, बड़े तरीके से, बड़े प्यार से और बड़े ही लालच दे के, पैसे दिखा के, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम है, पैसा उसके पास खुला है, गाड़ी है, ये सारी चीज़ें औरतों का जिस्म लूटने के लिए इस्तेमाल करता है और अगले बंदे को महसूस भी नहीं होने देता। कभी आपके शौहर को शक नहीं हुआ कि ये जो शख्स है इतनी देर से मुसलसल हमारे साथ चल रहा है, वजह क्या है? मेरी बीवी के साथ फिजिकल तो होता होगा या कोई इस तरह का कोई रिलेशन होगा? नहीं, शुरू में मैं उससे कहती थी कि ये इंसान हमारे साथ क्यों इतना अच्छा चल रहा है, तो मुझे खैर इसके मुझे नहीं लगता ये ना कोई फ़ायदा ही उठाएगा। शुरू में जब हमारा था ज़्यादा मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कैसे, वो मेरा शौहर कहता था कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये ना बुरहान साहब बहुत अच्छे इंसान है, हमारी हेल्प ही कर रहे हैं। ये बाबा है, ये शख्स है, मैं तो बाबा ही कहूँगा, 65 साल उम्र है इसकी। इसने आपको भी ज़ाहिर आपने बताना है जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल किया है। हाँ, मैंने वही तो बताया कि इसने किया, तो मैं इसलिए तो आई कितने साल तक करता रहा? ये 3 साल हम इकट्ठे रहे हैं। 3 साल तक ये शख्स 65 साल आपको जिस्मानी तौर पर भी इस्तेमाल करता रहा। ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया ना कि उसको एक नौकरानी की और अपनी खिदमत के लिए चाहिए थी, क्योंकि बीवी चली जाती थी दफ्तर, सारा दिन अकेला रहता था, तो दफ्तर से भी रिटायर हो गया था, तो अब उसको बेचारे को यानी कि बीवी दफ्तर होती थी, ये आपके घर होता था? मेरे घर आता था, या साथ ही वो जो अपना इसका घर था सरकारी वहाँ होता था, क्योंकि बहन इसकी वहाँ रहती थी ना। बहन इसकी वहाँ पर रहती थी। सोशल मीडिया पर आने का मकसद क्या है? ये जो लड़कियाँ वीडियो देख रही हैं जो कि पैसों पर, गाड़ियों पर, ऐसे लोगों पर अपना दिल हार बैठती हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि किसी के ना करें, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं ना वो सिर्फ होते हैं टाइम पास के लिए। लड़कियां बेचारी रोती रह जाती हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर जाते हैं। अब मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं इस चक्करों में आ गई, क्योंकि एक बंदा कहते हैं मुझे, बल्कि कहते हैं लोग गंदी औरत है ये, तुम तो शादीशुदा तो तुम्हें तो पता होना चाहिए, पर जब कहते हैं ना बुरा टाइम आना ना किसी को पूछ के नहीं आता। और मैं लड़कियों को यही समझाऊंगी, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, ऐसे लोगों से बचो बस। जो पहली बार कब उसने आपको आमादा किया था अपने साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने का? क्या कहा था? मैंने कि तुम्हें प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मुझे ना तरस आता है तुम पे, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिलती जो जिसकी तुम हकदार हो, तो मुझे चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सारा कुछ दूँ। अगर बुरहान ये वीडियो देख रहा है, फाइनल उसको क्या कहेंगे? उसको यही कहूँगी कि मैं तो अपने यकीन पे भी शर्मिंदा हूँ कि इस इंसान पे मैंने यकीन किया, और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी ऐसी आदत थी, तुम और लोगों के पास चले जाते, मेरी ज़िंदगी तो ना बर्बाद करते, मुझे तो मेरे बच्चों में रहने देते। मैं कल भी वैसी थी, आज भी वैसी हूँ, क्योंकि गरीबी मेरे घर अभी भी है, परेशानी वगैरह तो अभी भी है। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं आए दिन, अगर मैं ऐसी होती तो मैं सोशल मीडिया पे कभी भी ना आती, क्योंकि मैं इसलिए ना आती कि मैं गलत हो जाऊँगी, लोगों को पता चलेगा। मेरे घर किसी का आना जाना नहीं है, फालतू लोगों का कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। कभी मुझे कोई देखेगा तो कोई कहेगा ना, इसको तो लोग देखते, बाहर अंदर आदमी कुछ भी कर सकते हैं जाके, अगर औरतों के घर कोई आना जाना होगा तो साफ पता चलेगा फलाने के घर ये चीज़। खैर नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद हरगिज़ नहीं, ये नहीं कि किसी शख्स को बदनाम करना या किसी शख्स को वायरल करना। मकसद ये है कि अपने मुल्क के अंदर ऐसे चेहरे जो कि लड़कियों को जिस्मानी तौर पर अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना पैसा दिखा के उनकी मजबूरियों को हल करके, और बाद में काम फिर वो जो जना होता है वो करना होता है औरतों के साथ। ऐसे लोगों का चेहरा आपके साथ शेयर करना। ये शख्स है 65 साल बाबा, अपनी उम्र का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि लोग इस पर बड़ी जल्दी मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग है, ये क्या करेगा। इस तरह के जो बुजुर्ग होते हैं वो बड़ा कुछ कर लेते हैं। पैसों का लालच दे के लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, अपनी गाड़ियों का लालच दे के, जिस तरह इनको 3 साल तक जिस्मानी तौर पर और इनसे अपनी बहन की खिदमत करवा कर इस्तेमाल किया है, इस तरह का सीन बहुत सारी लड़कियां ऐसे लोगों के हाथों से लुट रही होंगी। इस वीडियो का मकसद ये है कि ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करना। मेरी इस शख्स से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं, हमारा इससे कोई ज़ाती मकसद नहीं। मकसद ये है कि आपको ऐसे लोग दिखाएं जो कि मेरे मुल्क के अंदर रह के गरीब लड़कियों की, गरीब बच्चियों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। देखते रहिए अमन पॉइंट और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अल्लाह ने के बाद।